रहीम अस्सलाम वालेकुम। इट इज़ क्लास 7 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। टॉपिक हमारा है फेस शोइंग। तीसरा लेक्चर आज इसका, तो चलिए शुरू करते हैं। द फॉलोइंग डे द टू मैन केम टू आवर हाउस अगेन ऑन देयर वे टू द वेल एंड सैट डाउन फॉर अ लिटिल चैट. The woman of our house inquired from the daughter-in-law about the location of our house in Surinsar. अगले दिन वो दोनों औरतें कुएं को जाते हुए रास्ते में हमारे घर आई और थोड़ी देर बातचीत करने के लिए बैठ गई। हमारे घर की औरतों ने बहू से पूछा कि सुरनसर में इसका घर कहाँ वाक़ा है। The mother-in-law advised her, you see, the younger aunt is called Chachi and the elder aunt is called Tai. My sons address them like that. You should also do likewise. And this is Bobby, my elder son's wife. Her husband and Gulamuddin went to school together. I call her by her first name, but you should always address her Bobby. इसकी सास ने उसे नसीहत करते हुए कहा कि बहू, तुम जानते हो छोटी खाला को चाची कहा जाता है और बड़ी खाला को ताई कहा जाता है। मेरे बेटे इन्हें यही कहकर बुलाते हैं। तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। और ये भाभी है मेरे बड़े बेटे की बीवी। इसका खाउंद और गुलाबदीन इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। मैं इसे हमेशा इसका नाम लेकर बुलाती हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा उसे भाभी कहकर बुलाना चाहिए। After a few days, the mother-in-law stopped coming with her daughter-in-law. Probably she was engaged in other domestic chores at home. Rahim Bibi came to the well twice in the morning and once in the evening. कुछ दिनों के बाद सास ने बहू के साथ आना बंद कर दिया। शायद वो घर के दूसरे काम धंधों में मसरूफ़ हो गई थी। रहीम बीबी को कुएं पर सुबह 2 बार और शाम को 1 बार आया करती थी। Going to school. In the morning we would see her on the way. One day while the other boys had gone ahead, I remained behind when I saw her coming from the opposite direction. She had her face covered as usual right down to the throat. A little hesitantly, I said, Rahim Bibi, you can show your face to me. I am so small. एक दिन जब दूसरे लड़के आगे निकल गए थे तो मैं पीछे रह गया। जब मैंने इसे सामने की तरफ से आते हुए देखा, उसने अपना चेहरा पहले की तरह गर्दन तक ढका हुआ था। थोड़ा झिझकते हुए मैंने कहा, रहीम बीबी, आप अपना चेहरा मुझे दिखा सकती है, मैं तो बहुत छोटा हूँ। Rahim Bibi kept walking and said, Bauji, if you want to see my face, you will have to give Masani. रहीम बीबी चलती गई और उसने कहा, बाबूजी, अगर आप मेरा चेहरा देखना चाहते हो तो आपको मसानी देनी होगी। We were walking in different directions and before I could give any reply, she had gone some distance. तो हम मुखालिफ सिमत में जा रहे थे और इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाता वो कुछ दूर जा चुकी थी। The next day I managed to remain behind. Again, as I crossed her path, I said, Rahim Bibi, what would you like to have a masani? I shall get it for you from mother. Rahim Bibi replied, No, not from Chachi. I shall show you my face only when you give masani out of your own earning. Until then, I will not lift my veil. अगले दिन मैंने फिर से जानबूझकर पीछे रह जाने का बहाना बनाया। जो ही रास्ता पार करते हुए गया, मैंने कह दिया, रहीम बीबी, आप मसानी के रूप में क्या लेना चाहेंगी? मैं आपको वो माँ से ला कर दे दूँगा। रहीम बीबी ने जवाब दिया, नहीं, चाची से नहीं, मैं आपको अपना चेहरा सिर्फ तभी दिखाऊंगी जब आप अपनी कमाई में से मसानी लाकर देंगे, तब तक मैं अपना घूंघट नहीं उठाऊंगी। Rahim Bibi stuck to what she said. For years she kept her veil. In the next 3 years I did my 8th class and went to Jammu for further schooling. From Jammu I went to Srinagar and could not go to the village for another year and a half.
I was now 15 and had failed in the 9th class. When I went home during the vacation and met Rahim Bibi, she asked, Bauji, in what class are you studying now? 9th. Last year, you were also in the 9th. I felt at a loss for words and couldn't bear to stand in front of her and moved away, mumbling, yes, yes. रहीम बीबी इस पर अटल रही जो उसने कही थी कि कई सालों तक इसे अपना घूंघट ओढ़े रखा। अगले 3 सालों में मैंने अपनी 8वीं जमात पास कर ली और आगे की पढ़ाई के लिए जम्मू चला गया। जम्मू से श्रीनगर चला गया और मज़ीद 1.5 साल तक गाँव न जा सका। अब मैं 15 साल का हो गया था और 9वीं जमात में फेल हो गया था। जब छुट्टियों के दौरान मैं घर गया और रहीम बीबी से मिला तो उसने पूछा, बाबूजी आप किस जमात में पढ़ रहे हो? 9वीं में। पिछले साल भी आप 9वीं में थे। मुझे कोई अल्फाज सूझ नहीं पाया और इसके सामने खड़ा न रह सका और फिर बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। हाँ दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।